Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the LawEd channel. In this video, we are going to continue the series of the practice MCQs of the administrative law, which will be beneficial for your All India Bar examination. So let's start. Our first question is, in R.D. Shetty versus the International Airport Authority, which was the case of 1979, what was stated by Justice Bhagwati about the enforcement of the public law limitations on the autonomous corporations? इनमें से कौन सी बात हेल्ड करी गई थी इस केस में? दैट मीन्स आर.डी. शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के केस में. So our first option is, the autonomous corporation is subject to the same public law limitations as the government itself. Option number B, as the autonomous corporations are distinct and independent legal entities, is not subject to the same public law limitation as that of government itself. Option number C, as the government and the autonomous corporation are distinct and independent entities, are not subject to the same public law limitation. Or is it option number D, that is the autonomous corporation is not a governmental body? इनमें से कौन सा ऑप्शन हेल्ड करा गया था? So the correct answer to this question will be option number A, that is the autonomous corporation is subject to same public law limitation as the government itself. ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो गया है, ऑप्शंस इसके बड़े हैं, लेकिन ये केस लॉ आप याद कर लीजिएगा because this will be helpful for your AIBE exam. Our next question is, the maxim Audi altrum partem denotes. सी, इस मैक्सिम के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था. ये मैक्सिम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका मीनिंग भी मैंने बताया था. ठीक है, वी हैव ऑप्शंस. नो वन शैल बी जज ऑफ हिज ओन केस. ऑप्शन नंबर बी, नो वन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. ऑप्शन नंबर सी, राइट्स आर बेटर देन ड्यूटीज. और इज इट ऑप्शन नंबर डी, all of the above? And the correct answer to this question will be option number B, that is no one shall be condemned unheard. और ये natural justice का principle है. ठीक है, that means हमें other party को भी सुनना पड़ेगा before giving a judgment. ठीक है, this is Audi altrum partem. The next question is, which is the most valid ground for issuing writ of mandamus? इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा वैलिड ग्राउंड लग रहा है फॉर इशूइंग द रिट ऑफ मैंडमस? सी, रिट हम दो आर्टिकल के द्वारा हम इशू करवा सकते हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 32 एंड आर्टिकल 226. ठीक है, ये हमें रेमेडीज प्रोवाइड करते हैं अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो. ठीक है, अब इनमें से कौन से ग्राउंड पर हम रिट ऑफ मैंडमस इशू करवा सकते हैं? इज इट ऑप्शन नंबर ए, वांट ऑफ जुरिसडिक्शन. Option number B, error apparent on the face of record. Option number C, violation of the principles of natural justice. Or is it option number D, an officer's neglect of public duty imposed by law? इनमें से कौन सा एक वैलिड ग्राउंड है जिस पर हम रिट ऑफ मैंडमस इशू करवा सकते हैं? And the correct answer to this question will be option number D, that is an officer's neglect of public duty imposed by law. मैंडमस का मतलब होता है वी कमांड. दैट मीन्स हम एक पब्लिक ऑफिसर को हम कमांड करते हैं कि आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, with respect to which of the following suggestions by the Frank Committee report were made? Is it option number A, departmental authorities? Option number B, administrative tribunal? Option number C, public corporation? Or is it option number D, administrative bodies? इनमें से कौन से सजेशन के द्वारा by the Frank Committee रिपोर्ट बनाया गया था? मतलब इनमें से कौन सा बॉडी बनाया गया था by the Frank Committee report? Okay. And the correct answer to this question will be option number B, that is administrative tribunal.
सी, हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ground of error of law apparent on the face of record is connected with which of the writ? एरर ऑफ लॉ जो कि हम देख सकते हैं ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, हमें apparently नजर आ रहा है, तो हम कौन सा रिट इशू करवाएंगे? इज इट रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ कोवरेंटो, रिट ऑफ मैंडेमस, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, रिट ऑफ सर्शरारी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स द रिट ऑफ सर्शरारी। सर्शरारी का मतलब होता है टू सर्टिफाई समथिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रिट द प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा इज नॉट एप्लीकेबल? इनमें से कौन से रिट में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल नहीं लागू होता है? सी, रेस जुडिकाटा हमें सीपीसी के सेक्शन 11 में देखने मिलता है, और इसका ये मतलब होता है कि कोई भी अगर डिसीजन आ चुका है, किसी भी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है और उस पर अगर डिसीजन आ चुका है कोर्ट का, दैट मीन्स जजमेंट डिक्री वगैरह आ चुकी है, तो हम उस पर एक दोबारा कोई न्यू केस नहीं दाखिल कर सकते हैं। ओके, दैट इज रेस जुडिकाटा। तो इनमें से कौन से प्रिंसिपल पर, कौन से रिट पर रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं हो सकता होता है? इज इट रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, रिट ऑफ सर्शरारी, और इज इट ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिट ऑफ कोवरेंटो? और इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेबियस कॉर्पस। ये क्वेश्चन आपके लिए सीपीसी के सब्जेक्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच रिट द हाई कोर्ट एग्जामाइन्स द वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन? इनमें से कौन से रिट के द्वारा हाई कोर्ट एग्जामाइन करती है वैलिडिटी ऑफ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक ऑफिस? ठीक है, इज इट ऑप्शन नंबर ए, रिट ऑफ सर्शरारी, ऑप्शन नंबर बी, रिट ऑफ मैंडेमस, ऑप्शन सी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, और इज इट ऑप्शन डी, रिट ऑफ कोवरेंटो? हम बात कर रहे हैं रिकॉग्निशन ऑफ पब्लिक ऑफिस, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ पब्लिक ऑफिस को किस तरह से होल्ड करते हैं, पब्लिक ऑफिस के कैसे हम एग्जामिन कर सकते हैं, इनमें से कौन से रिट के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिट ऑफ कोवरेंटो। दैट मीन्स कोवरेंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, ठीक है, मतलब अगर हम पूछ रहे हैं किसी भी पर्सन से वही कि आप इस ऑफिस को कैसे होल्ड कर रहे हैं, तो हम ये रिट डलवा सकते हैं और रिट के द्वारा कोर्ट उनसे पूछेगी बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर होल्डिंग दिस पोस्ट। ओके, दिस इज कोवरेंटो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है What was opined by the Professor Wade and Phillips about the separation of power? सेपरेशन ऑफ पावर के मामले में प्रोफेसर वेड एंड फिलिप्स ने क्या कहा था? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज द सेम सेट ऑफ पर्सन्स should not compose more than one department of the three departments? Option B, one department should not exercise the functions of the other two departments? Option number C, one department should not control or interfere with the work of other two departments? Or is it option number D, all of the above? हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं या फिर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट? तो इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें तो सेम सेट ऑफ पर्सन्स शुड नॉट कंपोज मोर देन वन डिपार्टमेंट ऑफ द थ्री डिपार्टमेंट्स. One department should not exercise the functions of the other two departments, and also one department should not control or interfere with the work of the other two departments. इन तीनों स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि सेपरेशन ऑफ पावर हम यहाँ पर शो करना चाह रहे हैं. The next question is, what are the grounds by which judiciary may interfere with the awards and orders of the administrative tribunal? ग्राउंड्स पूछा जा रहा है बाय विच जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है विद द अवार्ड्स एंड ऑर्डर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स. क्वेश्चन नंबर 22. वी हैव ऑप्शंस
where the tribunal has acted without jurisdiction, जब ट्राइब्यूनल ने बिना किसी jurisdiction के एक्ट कर दिया है. Option B, where the tribunal has acted in violation of the principles of natural justice. अगर ट्राइब्यूनल वायोलेट कर रही है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को. ऑप्शन नंबर सी, नो जुडिशियल इंटरफियरेंस इज पॉसिबल विद द अवार्ड एंड ऑर्डर्स ऑफ द ट्राइब्यूनल्स. जुडिशियली इंटरफेयर नहीं किया जा सकता है. और इज इट ऑप्शन नंबर डी, वेयर द अवार्ड ऑफ द ट्राइब्यूनल इज आर्बिट्ररी एंड मैलिशियस. अगर अवार्ड जो है वो आर्बिट्ररी एंड मैलिशियस है तो उस केस में भी जुडिशरी इंटरफियर कर सकती है. ठीक है, तो इनमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो मैं बता दूं, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. दैट मीन्स अगर ट्राइब्यूनल ने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करा है तो जुडिशरी इंटरफेयर कर सकती है. मैंने बताया था कल की क्लास में कि जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है उसके वायोलेशन में अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उस बेसिस पर कोई भी ऑर्डर या अवार्ड आता है तो दैट विल बी नल एंड वॉइड. ठीक है. The next question is, Central Vigilance Commission has been created on the recommendation of. Central Vigilance Commission को किसके recommendation पर create करा गया था? Is it Swaminathan Committee, Santhanam Committee, Administrative Reforms Committee, or is it Kothari Committee? We are talking about the Central Vigilance Commission. And the correct answer to this question will be option number B, that is संथानम कमिटी के रिकमेंडेशन पर हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया है. The next question is, what is the leading decision in case of Menka Gandhi versus Union of India? मेनका गांधी is one of the most important case. इसके फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, इसमें क्या अपहेल्ड किया गया वो पता होना चाहिए, और कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है ये केस लॉ वो भी पता होना चाहिए. ठीक है. यहाँ पर बोला जा रहा है कि आखिर उसमें क्या क्या हेल्ड करा गया था या लीडिंग डिसीजन क्या आया था. इज इट राइट ऑफ हियरिंग? ऑप्शन ए हो सकता है. ऑप्शन नंबर बी, सेपरेशन ऑफ पावर्स. ऑप्शन नंबर सी, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. या फिर ऑप्शन नंबर डी, रूल ऑफ एविडेंस. हम बात कर रहे हैं मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस और इसके लीडिंग डिसीजन के बारे में पूछा जा रहा है. तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइट ऑफ हियरिंग. दैट मीन्स यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. हमने एक मैक्सिम पढ़ी है ऑडी अल्ट्रम पार्टम, उसकी हम बात कर रहे हैं. दैट इज ऑल्सो नोन एज राइट ऑफ हियरिंग. ओके. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडिंग एक्ट आर्टिकल 323A relating to the tribunal was included in Constitution of India. कौन से अमेंडिंग एक्ट के द्वारा आर्टिकल 323A जो कि रिलेट करता है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड तो उसे ऐड करा गया था? इनमें से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? ओके. इज इट ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 38th अमेंडमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन 38th अमेंडमेंट एक्ट, 41st अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 44th अमेंडमेंट? आर्टिकल 323 को ए को इनमें से कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐड करा गया? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है बिकॉज इस अमेंडमेंट के द्वारा हमने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following statement hold true for the adjudicatory bodies? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिगार्ड टू द adjudicatory body? Is it option number A, that is doctrine of stare decisis applies to them? Option number B, doctrine of res judicata does not apply to them? Option number C, inherent lack of jurisdiction in a tribunal cannot be cured or created by the act of the parties? Or is it option number D, none of the above? ठीक है. हम बात कर रहे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है फॉर द एडजुडिकेटरी बॉडीज.
एंड इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन इन अ ट्राइब्यूनल cannot be cured or created by the act of the parties. पार्टीज के एक्ट के द्वारा हम क्रिएट इनहेरेंट लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन इन ट्राइब्यूनल को हम क्योर नहीं कर सकते या फिर क्रिएट नहीं कर सकते बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 323A, दैट मीन्स ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है. 323B ये भी ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है. इसे इंक्लूड करा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट. तो इसका सही आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया. 323A को हमने ऐड करा था 42nd अमेंडमेंट के द्वारा एंड 323B को भी उसी के द्वारा ऐड करा गया था. ठीक है, 42nd अमेंडमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 323A और 323B को हमने कॉन्स्टिट्यूशन के 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा ऐड करा. अगर मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ तो आप अपने YouTube के सेटिंग में जाके स्लो कर सकते हैं, या फिर अगर मैं लग रहा है आपको कि अगर मैं धीरे बोल रही हूँ आपको और फास्ट सुनना है तो आप स्पीड भी कर सकते हैं साउंड को. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है Which one of the following statement is right regarding the administrative law? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओके, with regard to the administrative law. Is it option number A, that is administrative law is a branch of private law and is independent of constitutional law? Option number B, administrative law is a branch of public law and controls the constitutional law. Option number C, administrative law is a branch of private law and a part of the constitutional law. Or is it option number D, that is administrative law is a branch of public law and a part of constitutional law? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में ये बहुत ही बेसिक बात है, आपको जरूर पता होना चाहिए इसका आंसर. और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो हमारा है ये एक पब्लिक लॉ का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का भी पार्ट है. ठीक है, अभी अभी आपने देखा कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात करी है, हमने आर्टिकल 323A एंड बी देखा है और हमने कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ भी देखे, जैसे मेनका गांधी का केस हमने देखा, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है why the Administrative Reforms Commission recommended for the establishment of an office known as Lokpal in India. Option A, because the existing institutions of judicial review and the parliamentary control are inadequate in view of ever expanding range governmental activities. Option number B, because it is an effective procedure or mechanism to redress individuals' grievances against administrative evil. Option number C, to satisfy the definition of the democratic government, that is the government of people and to the people. Or is it option number D, all of the above? बहुत ही ध्यान से आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा. अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए फिर आप आंसर दीजिए. क्वेश्चन नंबर 29, why the Administrative Reform Commission recommended for the establishment of an office known as Lokpal in India? और इसका सही आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ग्राउंड्स सही हैं. सी, क्योंकि एक एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन फॉर जुडिशियल रिव्यू एंड पार्लियामेंट्री कंट्रोल कम पड़ रहा था इन व्यू ऑफ द एवर एक्सपैंडिंग रेंज ऑफ गवर्नमेंटल एक्टिविटीज. ठीक है, ऑप्शन बी था कि बिकॉज इट इज एन इफेक्टिव प्रोसीजर और मैकेनिज्म टू रिड्रेस इंडिविजुअल्स ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इविल. तीसरी बात, टू सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल एंड टू द पीपल. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही है. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, if the legislation made by the executive in exercise of the powers conferred on it expressly by the constitution, then what kind of legislation is this? कि किस तरह का legislation है?
अगर लेजिस्लेशन बनाया गया है एग्जीक्यूटिव द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड ऑन इट एक्सप्रेसली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा एग्जीक्यूटिव को पावर मिली। तो क्या ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है, कन्फर्ड लेजिस्लेशन है, ओरिजिनल लेजिस्लेशन है, या फिर अ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन? तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ये एक ओरिजिनल लेजिस्लेशन है, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल रही है टू मेक द लॉ, टू एक्सरसाइज द पावर। ओके, पावर एक्सरसाइज करना हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज एन ओरिजिनल लेजिस्लेशन, ठीक है। इसी के साथ हमारा आज 30 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका सही आंसर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। ओके, द कंसेप्ट ऑफ ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव फर्स्ट टाइम कहाँ डेवलप हुआ था? क्या ये फ्रांस में डेवलप हुआ था, इंडिया में डेवलप हुआ था, कनाडा में डेवलप हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्राजील में डेवलप हुआ था? इसका आंसर आपको अगर पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अगर नहीं पता है तो आप इसके बारे में पढ़िए, कहीं से सर्च करिए, किसी भी तरह से आप इसका आंसर पता करने की कोशिश करिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगी और मैं आपके लिए नए क्वेश्चंस भी लेकर आने वाली हूँ। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 50 क्वेश्चंस जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपके लिए कंपनी लॉ के भी क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।